I never thought about कि हाँ लोग क्या सोचेंगे या लोग कंपैरिजन करेंगे. Of course they do a lot of comparison, but I had that confidence in me and I'm a confident girl basically that yes, अगर मेरे रास्ते में कुछ भी आएगा I'll do it. किसके साथ ज्यादा आपने कंपैरिजन फेस किया, विद सौम्या या फिर विद नेहा? नहीं, लोगों ने एक्चुअली मुझे जैसा लोगों ने मुझे बोला कि आई रिजेंबल ऑल्सो विद सौम्या. तो लोगों ने बहुत हाँ तो आई डोंट नो. तो ठीक है, सब आपके डॉपलगैंगर्स भी होते हैं, बट ठीक है. आई ऑलवेज एडमायर हर आल्सो as an actor. She had made the character. She was the first Anita. Correct. So I don't mind also. My co-actors, they have also supported me कि हाँ कैसा अनिता कैसी रही है. एंड धीरे धीरे आप करने लगते हो ना, यू बिकम द फ्लो. जब ये ऑफर आया तो आई न्यू द पॉपुलरिटी ऑफ दिस शो ऑफ कोर्स, एंड इवन आई लव दिस शो. मैंने जितने भी, मैं पूरा ऐसे थॉरली फॉलो तो नहीं करती थी, बट आई हैड सीन फ्यू. भाभी जी घर पर है is one of the best shows. It's a cult show. He's right here, and this was one of the best experience of our interview, of my interview with Shubhajit. And please follow, like, and subscribe Shubhajit's channel. और 10:30 बजे एनटीवी में क्या करना है वो तो पता ही है, मैं वापस बोलूंगा नहीं. बोलना पड़ेगा तो फिर देख लो. Alright, ladies and gentlemen, सब लोग को पता है कि भाभी जी घर पर है, लेकिन अभी फिलहाल भाभी जी घर पे नहीं है. घर से यहाँ पे she's been kind enough to come over here at the cafe where I do a lot of interesting podcasts. Thank you so much, Vidisha, for joining me over here. You're looking wonderful in white, all radiating peaceful vibes and everything. मुझे बताओ कि जब से of course you've been a familiar face in the south before coming to Hindi, and I know you're from Varanasi. मुझे आपका पूरा कुंडली पता है, सब कुछ पता है. Yeah, but मुझे बताओ कि जितने भी आप साउथ में पॉपुलर बन जाओ या फिर पीपल अप्रिशिएट यू, देयर इज दिस कांस्टेंट हंगर इनसाइड यू कि यार नेशनल ऑडियंस मुझे जाने, नेशनल ऑडियंस देखे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरी मीडियम फर्क तो पड़ता नहीं है, ओटीटी हो, मूवी हो, टीवी हो, व्हाटएवर. व्हेन सच एन आइकॉनिक कैरेक्टर केम योर वे, आई एम श्योर लोग बोलते होंगे कि यार कंपैरिजंस होगा, बट मुझे ये भी पता है कि यू आर नेवर बॉदर्ड अबाउट इट. Tell me the story behind having that kind of confidence, because it's not that you were a familiar face on TV, right? So without being that, वो confidence कहाँ से? What was the source of that confidence? You were never really bothered about your comparisons with Soumya. See, I have never been, I never got that feeling that I will not never ever fit in that character, because if someone has chosen me, they have taken my audition, and if someone is choosing me, of course they have seen something in me, and I saw the character. And when I saw the character, I saw Anita. I could relate myself with Anita, because I knew that I fit in the frame. And yes, I never thought about कि हाँ लोग क्या सोचेंगे या लोग कंपैरिजन करेंगे. Of course they do a lot of comparison, but I had that confidence in me, and I'm a confident girl basically that yes, अगर मेरे रास्ते में कुछ भी आएगा I'll do it. So somewhere, and Anita again is a confident girl. उसमें भी as a character, Anita is very confident lady, outgoing. She is smart, she is intelligent, and I could relate कि हाँ I can perform this character well, and result is front of you. सच बात बताओ, दिल से बताओ कि जब सेट पे जाती हो, रेडी होती हो वैनिटी वगैरह के बाद, उसके बाद वो जो शीशे पे देखते हो, वो अपने आप को देखते हो या कि अनीता को देखते हो? बिकॉज बोथ ऑफ देम कॉन्फिडेंट, बोथ ऑफ देम ब्यूटीफुल, बोथ ऑफ देम हैव सो मेनी कॉमन ट्रेट्स, राइट? अपने आप को ही देखती हो, राइट? I see Vidisha as Anita. I see both of them, because Anita, what Vidisha will do as Anita, because I wanted both the flavor, because हर actor का एक अपना flavor होता है which they put in the character. Like the Soumya, मेरे पास जिसने भी किया है उसने अपना flavor डाला. Vidisha as Anita कैसे लगेगी, इसलिए I have to keep Vidisha as well in Anita. मुझे बताओ, आपके पहले 2 लोग थे, राइट, फॉर दिस कैरेक्टर, एंड हर एक का एक फैन फॉलोइंग होता है, फैंडम होता है. एज फार एज कंपैरिजंस आर कंसर्न्ड, किसके साथ ज्यादा आपने कंपैरिजन फेस किया, विद सौम्या या फिर विद नेहा? नहीं, लोगों ने एक्चुअली मुझे जैसा लोगों ने मुझे बोला कि
I resemble also with Soumya. तो लोगों ने बहुत हाँ तो I don't know तो ठीक है सब आपके doppelgangers भी होते हैं but ठीक है I'll always admire her also as an actor as a human being also. So अगर इसमें comparison में कोई बुराई नहीं है और अगर लोग comparison करते हैं because of course she had made the character, she was the first Anita. Correct. So I don't mind also people comparing and I know what I'm doing and I'll give my best. So somewhere people also audience accepted me. So that's the best part. मुझे बताओ कि for everybody, any actor, any artist, once you start working, confidence level तो is there, but then once you start getting the results as well, ना, तो it's automatically like that happy hormone I would say कि वो जो काम करते हैं अंदर and जितना appreciation मिलता जाता है उतना you start getting better at it, right? Did you realize yourself while working in the process कि शायद day one में मैं जिस तरीके से अनीता बनी थी and cut to now, I'm a lot better version of how I started. Absolutely. And appreciation is food for an actor. Who doesn't want to get appreciated for an actor in any field? You love appreciation, people recognizing you, people admiring your work. You love that as a human being. You love that, and of course, I have gotten better. It's been more than 2 years now, and ऐसा लगता है अभी कल की बात है. It's been 2 years, and मैंने खुद भी एज अनीता धीरे धीरे विद ऑफ कोर्स माय को-एक्टर्स दे हैव आल्सो सपोर्टेड मी कि हाँ कैसा अनीता कैसी रही है एंड धीरे धीरे आप करने लगते हो ना यू बिकम द फ्लो यू गेट इन द फ्लो ऑफ दैट कैरेक्टर एंड अभी तो जैसे अभी अनीता बनने को बोलो मैं यूं बन जाऊं डायना हाथ दिखा रही थी बट एक्चुअली बाएं हाथ का खेल है बिकॉज अब 2 साल हो गए हैं आई हैव लिव्ड दैट कैरेक्टर एवरी डे आई वर्क एज अनीता सो ऑफ कोर्स समवेयर विदिशा अनीता विदिशा मिक्स हो गई है मुझे बताओ एक चीज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस एज फार एज हिंदी टीवी इज कंसर्न आज के जमाने में हम लोग देखते हैं कि यार पहले की तरह लॉन्ग रनिंग शोज उतने नहीं होते राइट बट 2 shows which I believe have really stood out. One is of course your show भाभी जी घर पर है दूसरा है तारक मेहता इसके अलावा मुझे याद नहीं आता कि कोई भी शो डिफरेंट चैनल्स whatever इतने सालों भर चलता है बिकॉज एवरेज शो टाइम आई वुड से 2 या 3 महीने में रैप अप हो जाता है बहुत सारे शोज राइट व्हेन यू गॉट दिस ऑफर फॉर भाभी मतलब भाभी जी घर पर है because of the longevity of the show because आप यहाँ पे आए थे and you wanted your work to be seen in Hindi right so was the factor कि चलो ठीक है ये शो इतना पॉपुलर है कैरेक्टर तो अच्छा है ही बट शो भी इतना पॉपुलर है सालों से चलता है अगर इसमें मैं घुस जाऊं एक लॉन्जिविटी मुझे मिलेगा एज एन आर्टिस्ट टू प्रूव माई सेल्फ एंड एक जो कॉन्स्टेंट फीचर होता है अपने आप को स्क्रीन पे दिखाना वो भी एक सिक्योरिटी बन जाता है व्हेन यू बी अ पार्ट ऑफ शोज लाइक दिस राइट सो वाज दैट आल्सो फैक्टर बिहाइंड डिसाइडिंग द शो नहीं ये तो बाद में आता है सोच बाद में आती है जब ये ऑफर आया तो आई न्यू द पॉपुलरिटी ऑफ दिस शो ऑफ कोर्स एंड even I loved the show. मैंने जितने भी मैं पूरा ऐसे thoroughly follow तो नहीं करती थी, but I had seen few episodes of the show and I knew that of course apart from the other show you were talking about, भाभी जी घर पर है is one of the best show. It's a cult show. Cult, absolutely. It is a cult show, and who wouldn't want to be a part of such show? Of course, if you are getting offer, मतलब कहीं भी हम ऑडिशन देने जाते हैं कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा रहता है कि हाँ हो जाएगा नहीं होगा बट इसके लिए ना ऐसे दिल से था कि यहाँ पे तो अगर हो जाए ना तो सुन रहा था एंड ट्रस्ट मी इट डिडंट टेक लॉन्ग जनरली यू गो थ्रू लॉट ऑफ प्रोसीजर्स की पहले ऑडिशन दूसरा ऑडिशन मॉक शूट तो there's so many criteria you have to pass but for this show touch wood actually God was listening like one day I gave audition next day I was on mock shoot I went for the mock shoot and I was finalized जो ऐसे सारे stages होते हैं I didn't have to go through them because they saw Anita in me and I was very confident I will do it I will do justice to this character क्या बात है एंड आई बिलीव कुछ अगर किस्मत में लिखा हुआ रहता है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता किस्मत ब्लेंडेड विद अ बिट ऑफ हार्ड वर्क टेक्स यू अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड ये तो चलो ये सक्सेस वाला पार्ट हो गया वेयर एवरीबॉडी इज रियलाइजिंग कि यू आर स्लेइंग एज अनीता भाभी राइट नाउ गोरी मेन एंड एवरीथिंग बट इसके पहले सक्सेस आल्सो कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ फेलियर राइट तो ये तो मिल गया अच्छा बात है टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस इट्स वर्किंग इसके पहले टेल योर ऑडियंस अबाउट अ बिट ऑफ द रिजेक्शन दैट यू फेस
बिकॉज लाइक यू सेड बहुत सारे ऐसे जगह पे होता है कि यार डिफरेंट राउंड्स ऑफ ऑडिशन तुम देते हो, लास्ट तक लोग कभी कभी ऐसा फील भी करवाते हैं कि तुमको मिलेगा, देन लास्ट में ड्रॉप आउट कर देते हैं, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी आर्टिस्ट टू डील विद ऑल दैट, राइट? कितना झेला ये चीज? ये देखिए, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर। आप शायद किसी और फील्ड में इतने रिजेक्शंस नहीं मिलते जितना एज एन एक्टर मिलता है आपको। यू गो टू ऑडिशंस, लाइक आप महीने में 10 ऑडिशन देते हो, आप 10 जगह जॉब के लिए नहीं जाओगे शायद, ये 10 जगह, बट 10 से 15 ऑडिशंस भी दोगे अलग अलग जगह जाके, और वहां पे आपको हो सकता है 15 की 15 जगह रिजेक्शंस मिल जाए, शायद 10 जगह एक बार मिले, फिर 5 जगह आपको दोबारा बुलाया जाए, दोबारा बुलाया जाए, मॉक शूट्स हो जाए, कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है, उसके बाद भी पता चलता है आपको रिप्लेस कर दिया गया है ओवरनाइट। इट हैपेंस लाइक फॉर नो रीजन, एंड व्हेन यू, ठीक है, यू नो, इससे ना आपके अंदर बहुत पेशेंस आता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो यू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज नॉट अबाउट, यू नो, इट्स नॉट ऑल गुडी गुडी, यू हैव टू फेस इट, बिकम स्ट्रॉन्गर। इसीलिए ना बहुत इमोशनल अंदर के अंदर ना स्ट्रांग हो जाते हैं जो भी एक्टर्स होते हैं, बिकॉज यू फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शन एंड इट्स नॉट इजी टू 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 टेक इट। इनिशियली इट बिकम्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना इन लाइफ एज एन एक्टर, यू अंडरस्टैंड दैट, हम चाहते भी है ना, अभी कहीं भी ऑडिशन देने जाते हैं तो होगा नहीं होगा, एक कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। so true, हाँ, अब हमारा यही रहता है। तो कोर्स मैंने बहुत सारी, मेरे पहला शो था एज अ ऑन टीवी, ये है मोहब्बतें, उसमें मुझे अच्छा रिकॉग्निशन मिला। फिर उसके बाद मैंने 4-5 शो चूज किए, लेकिन यू नो वो नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। हाँ हाँ, जो 6 महीने 8 महीने चल रहा था, फिर एंड अगेन कमिंग टू द ड्यूरेशन पार्ट जो हुई, हाँ एग्जैक्टली, तो तब वो नहीं हो रहा था, बट व्हेन आई, ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस वाज वेटिंग, इसके लिए और कुछ वर्क नहीं किया। यूनिवर्स का अलग ही फंड है, मतलब कैसे कैसे तुमको वो सही डायरेक्शन पे लेके जाएगा तुमको पता ही नहीं है। He has of course better plans and eventually you have to trust the process. ये जो तुमने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है कभी कभी, फिर ओवरनाइट रिप्लेस कर देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो जो रिप्लेस भी होता है, a lot of places what I have seen is that a lot of my friends as well are actors, जो बोलते हैं कि यार बताते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, मतलब सब सामने से कर्टसी एक होता है कि चलो तुमको एक तो वो भी होना नहीं चाहिए, बट अगर कर रहे हो तो कम से कम सामने से बताओ, लेकिन वो भी नहीं होता। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है? where they are not told, you have followed up from yourself, your hand, तुम्हारे तरफ से क्या था? मैंने एक्चुअली मैं ना पीछे नहीं पड़ती हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त की बताओ 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 बताओ, आई स्टे बैक एंड आई वेट। मुझे बोला था और कहीं ऑडिशन बन देना, कुछ भी नहीं, योर फाइनलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड, एवरीथिंग, लाइक वो जो 10 प्रोसेस, वो स्टेजेस होते हैं, सब क्रॉस करके, पता चला आप 1 महीना बैठे हुए हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, प्री प्रोडक्शन का काम बहुत बहुत सारा होता है, आई एम नॉट कॉलिंग, आई एम नॉट कॉलिंग, नॉट कॉलिंग देम। फिर पता चलता है और एक और, मतलब 20-25 दिन चला जाता है, 1 महीना बीत जाता, पता चलता है कि वो लोग ऑलरेडी फ्लोर पे जा रहे हैं, एंड विद सम न्यू गाय एंड न्यू गर्ल, मतलब पूरा सबकी कास्टिंग चेंज कर दी है उन लोगों ने। एंड आई लाइक, मतलब मैंने ये भी कॉल नहीं किया उनको कि हाँ ठीक है, कि एटलीस्ट यू शुड हैव कर्सी टू कॉल मी, मतलब मुझे ऐसे लोगों से लेना देना नहीं है जिनके अंदर इतना भी वो नहीं रहता है। You have seen it happen, but तुमने सामने से रिएक्ट नहीं किया। नहीं किया रिएक्ट। That shows a lot of large-heartedness. Yes, because exactly, मैं मुझे फोन करके फाइट करके क्या मतलब है? It's okay. They are, मतलब I can't change them, and I don't want to change them. It's again, it's a lesson, it's a learning, it's a process, and it gives you patience in life, you know. टेल मी अबाउट योर, यू नो, ये हर एक एक्टर का, आर्टिस्ट का एक मोमेंट होता है कि देखो पैशन तो होता ही है बहुत लोगों का, लोग थिएटर करते हैं, ये करते हैं, बट एक वो अंदर से कॉलिंग आता है एक टाइम में व्हेन यू रियलाइज की बॉस दिस इज व्हाट आई जेन्युइनली वांट टू चेज इन लाइफ एज अ प्रोफेशन। तो तुम्हारे लिए वो मोमेंट कब था इन योर लाइफ? was it a specific day, was it a specific situation or moment जब तुमको लगा कि listen, you know, I genuinely feel that I'm a damn good actor, I have to believe in myself that I'm a damn good actor and I can be there where it matters the most? वो दिन याद है? No, I don't think so, because मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरा रास्ता यही था, मुझे एक्टर बनना था, क्योंकि लोग मुझे टचवुड में लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे हमेशा से कि हाँ शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल, शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल। आई एम फ्रॉम वाराणसी, वहां पे यू नो लोग अप्रिशिएट करेंगे तो आप वैसे भी हो जाते हैं कि खुद को एक क्वीन समझने लगते हो। छोटे, हाँ, छोटे शहर की छोड़ वैसे लोग, बट फ्रॉम वाराणसी टू मुंबई इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक आएंगे, डेफिनेटली।
वहां पे छोटे छोटे मैं ऐसे शोज करती थी, रैम्प शोज करती थी, थिएटर्स किया, लेकिन बॉम्बे आने का सपना तो कभी ऐसे सोचा नहीं था। बट वही कहते हैं ना, वो प्रोसेस होता है, गॉड हैड प्लान्स एंड somehow it's रॉन्ग स्टोरी अगेन। आ ही गए, लेकिन ऐसा प्लान नहीं किया था, बट हाँ, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। लॉन्ग स्टोरी का कोई फंडा है नहीं, आज बहुत टाइम है, बात करेंगे। दिस इज व्हाट अ पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट, बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लोर हर लाइक नेवर बिफोर। कॉन्वर्सेशन छोटे बहुत कैरेक्टर्स को लेके होते, बट वी वांट टू अंडरस्टैंड विदिशा एज द पर्सनालिटी दैट शी इज, राइट? यू नो, बॉम्बे का डिसाइड कर लिया कि आओगे, फैमिली उस टाइम पे साथ थी कि नहीं थी? फैमिली मेरी इमीडिएट फैमिली, यस, आई एम हियर sitting with you right now. You're taking my interview on this podcast because of my father and mother. Uncle, auntie, yes, you know what it is. because they stood by me. Of course, again, I'm being from a conservative family. Extended जो मेरी family है, of course, they were not very supportive कि हाँ मतलब बनारस की लड़की कहाँ बॉम्बे जाएगी। And I was still very mod for वाराणसी। अगर मैं टाइट जीन्स पहन लेती थी तो people used to question me कि ये जीन्स पहनती है, इसकी लड़की जीन्स पहनती है, फलाना की लड़की जीन्स पहन के। अभी तो जीन्स, क्रॉप टॉप वगैरह। एग्जैक्टली। आज से अगर 20 साल पहले की बात करो, उस समय अगर मैं टाइट जीन्स पहन के बनारस की छोटी छोटी गलियों में निकल जाती थी, तो लोग बहुत क्वेश्चन करते थे, देखते भी थे अच्छे से नहीं, और घर वाले भी एक्सटेंडेड फैमिली वो करते थे कि क्यों पहनती है। आज दे स्टैंड नेक्स्ट टू मी एंड दे वांट टू टेक फोटोग्राफ्स विद प्राउड ऑफ यू। यस, मतलब मैंने कभी किसी को जवाब नहीं, मैं ये सोचती हूँ ना कि टाइम विल टेल। मैं कभी ना किसी को उलट के ना ऐसे मुंह से जवाब नहीं देती हूँ। कोई कुछ भी बोलता है, ओके लेट्स वेट। हाँ, बिकॉज आई नो द प्रोसेस कि हाँ कल को वही लोग आके मेरे साथ बगल में बोलते हैं आओ तुम्हारे साथ फोटो खिंचाते हैं, फिर वही लोग अपने फेसबुक और सोशल मीडिया में डालते हैं। तो ऑफ कोर्स देयर वर ऑब्स्टिकल्स मेरे फैमिली ने, लेकिन मेरी मेरी इमीडिएट फैमिली ने, दे स्टूड बाय मी, दे टुक मी हियर। मेरे फादर मेरे साथ आए थे व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट ऑफर बॉम्बे से एक शो का। देयर वाज अ स्मॉल शो, टीवी शो फॉर DD1, एंड he left his work and he took me here because yes, because I wanted to do कि हाँ मुझे करना है। ठीक है? हाँ, तो Daddy's little princess always, huh? yes, always मतलब आज इसीलिए मैं बोलती हूँ मुझे अपनी माँ बाप का नहीं, पूरा आशीर्वाद और ब्लेसिंग मिली है जो मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। And I believe that whoever is humble enough to count those blessings are the ones who actually shine in life. You know, you said your immediate family was supportive. तो दूसरे जो आजू बाजू के हैं रिलेटिव्स वगैरह, वो टांग अड़ा रहे थे, वो डरा रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स को कि यार बॉम्बे में जाओ, ये जाएगी, अकेली लड़की है, खुली तिजोरी होती है, ये वो चील कौवे नोच के खा जाएंगे, ऐसे ऐसे डराते थे तुम्हारे पेरेंट्स? देखो मेरे फादर भी वाराणसी के थे। उनको वो था कि हाँ मतलब ऐसे बड़े शहर जाएगी तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की ऐसा, आप अगर आप केयरफुल नहीं रहो तो ऐसा नहीं, इंडस्ट्री का किसी भी जगह, किसी फॉर दैट मैटर, किसी भी कॉर्पोरेट कहीं भी जाओ तो डैड, इसीलिए डैड केम विद मी, इसीलिए he was so supportive, he didn't leave me alone, he was my bodyguard। लोग यहाँ पे ना आने के बाद लोग बोलते भी थे क्यों बॉडीगार्ड लेके चल, ये लोग नॉट सो गुड पीपल, टिपिकल। डैड वाज लाइक कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट लीव माय गर्ल अलोन, she wants to do, I'll let her do, but I'll be by her side, protect her and let her fly। Very nice। जितना भी प्रोटेक्शन वगैरह डैड रहे क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी स्लाई पीपल आर स्लाई पीपल एट द एंड ऑफ द डे। या तो कोई डायरेक्टली बोलता है बहुत कुछ, या फिर कोई इनडायरेक्टली बोलता है, राइट? हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर यू थॉट दैट द वर्क मीटिंग वाज गोइंग प्रोडक्टिव, अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि सीरियस काम होने वाला है ये वो, लेकिन अचानक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या कोई भी है कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, इनडायरेक्ट हिंट दे दिया, जिसकी वजह से तुमको समझ में आ रहा है कि बॉस नहीं, काम तो इसको नहीं करना है, इसका इंटेंशन कुछ और है? So many times, I know industries, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा इनकाउंटर हुआ है जो मुझे पता है कि they are not interested in real work and it's okay। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं स्पेसिफिकली मीडिया के लिए नहीं बोलूंगी, ये मुझे लगता है कि हर फील्ड में, आप कॉर्पोरेट में भी जाओ, आप कहीं जॉब के लिए भी जाओ, जरूरी नहीं आपको हर जगह वो मिले। तो मैं इसलिए इसको हाईलाइट नहीं करूंगी कि मीडिया में ये होता है, बट हाँ क्योंकि मैं गुड लुकिंग थी, क्योंकि मैं लड़की but when I came like years back and I was naive, I was like बनारस की लड़की, तो of course people would want कि हाँ चलो थोड़ा तो फायदा उठाए, but then again मैं भी इतनी सेंसिबल थी, of course being a girl मुझे वो सिक्स सेंस रहता है, and yes obviously, and वो मुझे संस्कार मिले थे, और प्लस पापा भी रहते थे हमेशा साथ में,
So I was always safe. क्या बात है. On the very first day when you went sets पे भाभी जी के, तब आसिफ जी है, रोहितास जी है, उन्होंने क्या बोला था तुमको? बिकॉज यू वेर वेलकम्ड ऑन सेट, जितना मुझे पता है, इन अ वेरी नाइस एंड हैप्पी वे, राइट? उन्होंने क्या बोला था? यू रिमेम्बर द फर्स्ट इंटरेक्शन? फर्स्ट डे हम लोग मॉक शूट में मिले थे एंड दे वर वेरी वेरी वेलकमिंग एक्चुअली. दे वर हैप्पी. दे वर ऑफ कोर्स कि हाँ मतलब इनको ऐसे उनको भी मैं पसंद आई थी. ऐसा होता है ना, आपको कोई एक्टर जो अभी आ रहा है, नहीं आ रही, पसंद ना आए शायद, बट दे लाइक मी. एंड इवन शुभांगी, रोहिताशु जी, आसिफ जी, सबने बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया. एंड दे टोल्ड मी, इवन आई वाज आल्सो वेरी हम्बल बिकॉज दे ऑल आर सीनियर. they are doing this show like from years. So I always मैं भी उनके पास जाके हमेशा बोली कि कुछ भी मेरे से गलती होगी ना, प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा. वो छोटा बन के. Because of course comedy was a new thing for me. It was a new genre for me. मैंने सब किया था, पहले नेगेटिव किया था, पॉजिटिव किया था, बट कॉमेडी कभी नहीं की थी. एंड आई हैड टू लर्न फ्रॉम देम. आई डिडंट वांट कि मुझे कभी इन लोगों के बीच में ऐसा लगे कि हाँ आई एम ए न्यू कमर सो आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल. सो उनसे सीखने के लिए मैं खुद भी उनके साथ बहुत अच्छे से रही हूँ हमेशा. एंड वो लोग भी बहुत ही प्यार से रखा है मुझे. Yes. That's how it should always be. You work together like a family. मुझे एक बात बताओ, before coming to Hindi films, of course, आप साउथ में आपने बहुत काम किया है, right? Now साउथ में there is this perception, and it's not a perception, मेरा बनाया हुआ perception नहीं है दोस्तों. बहुत लोग, a lot of actors and actresses have also come out and said that कि वहाँ पे there's a certain way of objectifying and showing women, right? Like say for example, out of nowhere people take shots of the waist on navel, or out of nowhere there's a lot of skin show that's involved, right? तुमने जब काम किया था वहाँ पे, of course I don't want you to take any names वगैरह, but तुमने वो चीज फेस किया था where you thought कि out of nowhere, I've been asked to kind of show my skin, I've been asked to show my midriff or navel or anything like that, where it is not needed? No, touch wood, I never faced anything. But you know a lot of actors I know they have. हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग people have faced, girls have faced, but touch wood, I never got any any such offer or any. I was never in such situation. Request हाँ. नहीं glamour shots लिया like face और, but especially जहाँ मुझे ऐसा लगा कि I'm uncomfortable. अगर कभी ऐसा लगा भी कि मुझे लग रहा है कि like some dance moves were, there was a time like some dance moves were little uncomfortable for me. वो लोग choreograph कर रहे थे. I told them on their face I won't be comfortable doing this. But वो सुनते हैं वहाँ पे लड़कियों को? सुनेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं भाई. you have to ये मेरे ऊपर है. हाँ, नहीं करना नहीं करो, it's okay. But I'll tell you why I'm asking this, because उस time पे a lot of people get scared. मुझे निकाल दिया तो ये किया तो sometimes out of that pressure a lot of girls perhaps give into that situation, yes, but you got to be fearless enough to not give in. मेरे है कि काम चला जाए, it's okay, but I will not give in. I don't give in. I am actually a fierce girl. I don't care. काम से ज्यादा important है. Of course I love my work. It's my passion, it's my work, but मैं पागल नहीं हूँ इसके लिए. There's a difference between being mad about and just keeping it as a passion. Very so nice. I maintain that. You know how to draw the line. Yes, I do. जब से तुम आए हो, in your time, of course, social media is a huge boom, and I keep seeing your reels वगैरह. मैं आज भी देख रहा था इधर चालू करने के पहले. I saw some of your reels वगैरह as well. So I'm sure, given the kind of fandom जो आपका show enjoy करता है, आपका character enjoy करता है, बहुत interesting DMs तो आते ही होंगे, and you're a pretty lady as well. So I'm sure a lot of people must be confessing their love and प्यार in different romantic शायराना ways. कोई सबसे funny वाला एक कोई romantic message जो तुमको मिला किसी fan से, जो देख के तुमको इतना हंसी आ गया कि मतलब you couldn't resist yourself from laughing? अरे यार, ऐसे तो कितने आते रहते हैं, मतलब एवरेज में कितने पर डे? 50? वो रिक्वेस्ट में आते हैं, अलग रिक्वेस्ट, अलग सेक्शन है उसका. तो एक्चुअली डेली तो देखती भी नहीं हूँ, देख भी नहीं पाती हूँ, ऑफ कोर्स टाइम की वजह. हाँ, इट्स नॉट अ प्रायोरिटी. हाँ, एग्जैक्टली. कभी चेक देखते हैं. हाँ, पता नहीं, पर्टिकुलर मैसेज किसी का याद नहीं आ रहा. बहुत सारे लोग हैं जो, कुछ तो है जो रोज भेजते हैं, उनका तो मतलब फिक्स है. हाँ, कि उनको सुबह उठ के मैडम देखे ना देखे, इनको भेजना है मैसेज. और कुछ बहुत ही चीप भी रहते हैं, कुछ बहुत अच्छे रहते हैं, जिनका मतलब पढ़ के क्यूट भी रहते हैं एक्चुअली. Have you ever responded to a fan? अगर कोई ऐसा कोई क्यूट मैसेज लगा तो तुमने किया? नहीं, मतलब मैं ऐसे डायरेक्टली उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ, बट मतलब मैसेजेस, मगर मेरे जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, फोटोज पे अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, वो आ रहे, कमेंट्स आ रहे हैं,
मैं उसमें अक्सर रिप्लाई कर देती हूँ, कमेंट्स में करती हूँ, लेकिन पर्सनली मैसेज पे अगर एक बार कर दो तो देन दे विल कीप ऑन सेंडिंग, तो you know उनको समझ नहीं आता लाइन का ड्रॉ करके, हाँ, सो आई डोंट वांट टू ब्लॉक देम आल्सो, यू नो, फिर ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर दे आर फैंस, यू नो, आउट ऑफ लव दे डू थिंग्स, करेक्ट, तो आई डोंट वांट टू ब्लॉक, तो इसलिए वो इनिशिएट ही नहीं करना कि जहां पे जाके आपको कट ऑफ करना पड़े। वेरी वेरी नाइस वे टू हैंडल इट, 100%। मुझे बताओ कि एक और चीज जो है व्हिच इज देयर रेजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अपार्ट फ्रॉम टीवी शोज, ऑफ कोर्स, इज रियलिटी शोज। बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, सो मच ऑफ थिंग। तुमने बिग बॉस देखा है थोड़ा बहुत भी बाय एनी चांस? 17 पहला नहीं, फर्स्ट सीजन। अच्छा, ये वाला सीजन जो चला था, इसमें से किसी का भी मतलब कुछ भी ट्रेंड वगैरह वीडियो, नथिंग यू हैव सीन? नहीं, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करती हूँ। So there was a lot of stuff about Abhishek Kumar, then there was Munawar Faruqi and all these people as well. So इनका सीजन कुछ अभी इंटरेस्टिंग क्लिप आप इंस्टा शायद आप ऐसे सर्च करो, कोई रील वगैरह आ गया एंड यू रियलाइज ऐसा कुछ। आप देखते नहीं हो तो आपको सजेशंस में भी नहीं आते हैं। Right, true. Instagram and so they are smart. The algorithm, they don't even show me Big Boss का सारा story. But you think given the kind of funda and format Big Boss has, you can be there in a show like that अगर कभी मौका मिले आगे जाके तो? हाँ, अगर मौका मिलने की से ज्यादा अगर मैं उस समय रेडी हूँ वहां जाने के लिए, बिकॉज बीच में बात हुई भी थी, बट आई वाज नॉट रेडी टू गो। Why come meeting? What are you waiting for? नहीं, because I have certain other priorities. Of course, भाभी जी घर पर है is my priority right now, and I won't leave this for anything else for now. As of now, of course, it's a good show I have gotten, and जो सबको नहीं मिलता है। कैरेक्टर अच्छा चल रहा है, शो अच्छा चल रहा है, क्यों ज्यादा चेंज करने का, है ना? Life is set right Yeah, now. yeah. फिर देखेंगे बाद में eventually. As far as films are concerned, who are your favorite actors whom you have loved, enjoying, watching over the years? I've always been a Shah Rukh fan. I've always been in love with him since DDLJ. तो से कोई अवार्ड शो में हो, तुम गए हो वहां पे एंड रेड कार्पेट में वो पोज वगैरह कर रहे हो, अचानक शाहरुख खान एंट्री मान ले, क्या करोगे? I've worked with him thrice. I worked with him in at commercial. I've done a ramp show with him. Otherwise, also in parties, I have seen him. I've met him. But that doesn't matter. I'm a fan girl. I'm a fan girl. I'm a fan girl. I'm a Shah Rukh fan. Typical. And मुझे आज भी उसकी आंखों में वही वो रोमांस दिखता है जो तब दिखता था। है, इसीलिए है, of course. Last 2 questions that I have, उसमें से ये एक जरूर रहेगा कि 2 साल से you've been doing, and like you said in the very beginning, जितना तुम अनीता भाभी प्ले करते आए हो उतना तुमको लगता है कि तुम बेटर होते आ रहे हो, राइट? ऑडियंस में से कोई एक ऐसा बताओ, बट देयर इज आल्सो 2 पार्ट्स ऑफ इट, आइदर यू गेट अप्रिसिएशन और यू गेट ट्रोल्ड, राइट? इनिशियली जब तुम आए थे, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट लोग होते अडेप्टिंग टू चेंजेस व्हेन यू स्टार्ट। अभी तो 2 साल हो गए, लोग देख रहे हैं तुमको, दे हैव एक्सेप्टेड। जब स्टार्ट कर रहे थे, एक सेक्शन वाज अप्रिशिएटिव, एक सेक्शन वाज आल्सो डिमीनिंग, आई एम श्योर। उस टाइम पे जो लोग डिमीन कर रहे थे, थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ रहा था, और अगर पढ़ा तो उसको पॉजिटिवली कैसे चैनलाइज किया सो दैट यू नो कि इवन इनको भी मैं अच्छे से कुछ करता हूं? यू नो, बाय गॉड्स ग्रेस, जो अप्रिशिएट कर रहे थे, दैट पोर्शन वाज मोर देन हु वर डिमीनिंग और हु वर नॉट, लाइकिंग मी एज अनीता, और नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। सो इट डिडंट मैटर टू मी, बिकॉज जो मैं प्यार देखती हूँ, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे if I'm working honestly, if I'm giving my 100%, they will also start liking me. Matter of time. हाँ, it's just a matter of time, of course. And it actually happened. I have seen comments where they have written that in starting maybe they used to like you, but now you are slaying it. You are slaying it. We like you, we love you. Even in comments में, even DMs में भी. जैसे जैसे आपको ये सब ऐसे मिलता है ना, you become more confident कि हाँ चलो, अब वो शायद वो परसेंटेज शायद 1% हो गया है, जो नहीं, जो कुछ भी वो सबके लिए लिखते हैं, वो तो रहेगा जब तक you will get told। अगर कुछ तो ऐसे ही आते हैं, तुम अच्छा काम करो नहीं करो, उनको बस नीचे गिराना है, उनको लिखना है, कुछ भी लिखना है, अनाप शराब लिखना है, गुड इवनिंग लिखना है, गंदा लिखना है। I don't care about them. That's how it is. Last सवाल, and I want to end it on a very inspiring note कि जितने भी लोग काम करते हैं, when you become a mother, your responsibilities double up, right? तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस से तुम्हारे से सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, योर फैमिली हैज सर्टेन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। दिन में मिलते तो है 24 ही घंटे, ऐसा नहीं है कि मदर बन गए तो अचानक 40 घंटे हो गए, ऐसा तो नहीं होता। तो एवर सिंस यू बिकम अ मदर,
how have you balanced both the worlds together? Because I feel कि it is the most difficult thing जब आप तुम 12 घंटे 24 घंटे में शूट कर रहे हो, बाकी टाइम how are you balancing the overall thing so that you are yourself in a happy space? Because आपका पर्सनल लाइफ अगर ठीक नहीं रहेगा, वो आपके काम में जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता है, और you feel low even if you are an artist and you cover it, but पर्सनल लाइफ में खुश नहीं रहोगे, then वो थोड़ा बहुत काम में ऊपर नीचे हो जाता है. So how important is that for you? See, ever since I've become a mother, I'm a responsible girl. I can never run away from my responsibilities, and with motherhood comes a lot of responsibility. I take my babies, I take my baby on set like every day. I never leave her alone. Touchwood, मेरा production house इतना अच्छा है कि मुझे मतलब it's a sitcom. You get a lot of time in room also. Yeah. So I go give my scene, do my scene, give my shot, and I come back to my baby. So I have never ever run away from it कि मेरा baby हो गया है तो मेरा काम कहीं वो हो रहा है या काम. I have balanced it. Touchwood, I have a supportive family. My mother, मेरी बेबी की नानी मेरे साथ हमेशा रहती हैं. बिकॉज आप अपनी बेबी को एकदम न्यू बॉर्न में किसी और को भी नहीं दे सकते हो, नैनी को भी नहीं दे सकते हो. सो माय मदर इज वेरी सपोर्टिव, शी इज विथ मी, एंड वो डेली बेचारी मेरे साथ सेट पे आती हैं. जितनी देर मैं काम करती हूँ, व्हेन मैं शॉट देने जाती हूँ, उतनी देर वो बेबी को संभालती है. एज सुन एज आई कम इन माय रूम, शी इज विथ मी. मैं उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया मेरी बेबी को, ऑफ कोर्स. एंड 6 मंथ तक मैंने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखा है उसको, मतलब इतना भी कि चलो उसको फॉर्मूला दे दो, ये दे दो. सो आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज with my baby. I'm very responsible mother, and of course I have certain responsibilities towards my show also. So I have balanced it well, touchwood, with God grace, with my family's support, and of course with the production house system. I think intention जब सही रहता है, then सब कुछ overall everything falls on its own place, which is why supportive production house, supportive family, you're also discharging your responsibilities very well. And अनीता भाभी की तरह तो आप एकदम कमाल कर ही रहे हो वहाँ पे. I really hope कि जितना भी काम आप आगे करो, I really wish कि जितने भी manifestations तुम्हारे हैं जिंदगी के in terms of work, everything turns out to be true. And जाने से पहले हमारे साथ यहाँ पे भाभी जी जुड़ी है, तो भाभी जी के लिए हमारे पास है एक स्पेशल गिफ्ट which I am sure was not expecting. भाभी जी के लिए हमारे पास है ये स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल कुर्ती. भाभी जी आपके लिए ही है ये. डू यू लाइक इट्स अ स्पेशल इंडियन कुर्ती फॉर यू. आपको देख लो एक बार, अगर अच्छा लगे ये देख लो. दिस इज फॉर यू एंड वी विल सेंड मोर टू यू एज वेल इफ यू वांट. एंड दिस वी डू विद एवरीबडी, स्पेशली और हार्ड वर्किंग मदर्स जो लोग नए अच्छे से काम कर रहे हैं उनके लिए. थैंक यू सो मच. इट्स वेरी प्रिटी. It's very pretty and I love the color. It's very. लोगों को दिखाओ क्या है कलर. I love the color. This is like pastel purplish color, प्याजी actually, and this is very beautiful. I love the color. I love the gift. Thank you so much. Keep slaying as Bhabhi ji and whatever role that you do in the future. Guys, इनको support करते रहो. You know what to do. And बाकी एन टीवी में कितने बजे आते हैं सब बता दो एक बार वापस, जो लोग शायद अभी तक नहीं देखे होंगे, तो you need to tune in, right? So मैं हूँ विदिशा श्रीवास्तव, यानी कि आपकी प्यारी अनीता भाभी फ्रॉम भाभी जी घर पर है, जो आता है मंडे टू फ्राइडे 10:30 बजे रात में एन टीवी पर. प्लीज वॉच इट. 10:30 बजे कुछ नहीं करना है, यही करना है. ये नहीं देखोगे तो फिर ये नाराज हो जाएगी. फिर मतलब अपने घर पर रहो और भाभी जी घर पर है, देखो. हाँ, भाभी जी घर पर है, उनको उनके घर पे देखो. थैंक यू सो मच guys. That's a wrap on the Sunny G show by Rohit Consulting. This is your host Shubhajit with the one and only Vidisha. Thank you so much. Looking forward to seeing you all very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you.